السلام علیکم. ملا کر جی کیا ہے؟ جزاک يجري اللہ الآن تسجيل هذه المكالمة. اور ٹھیک ہے، کون صاحب ہیں؟ ہم بول رہے ہیں احمد رضا صاحب. اچھا بولو صاحب. احمد رضا صاحب. اگر ایک سوال ہے کہ جو شخص صحابہ کی کو کافر کہے وہ کیا مسلمان رہے گا؟ مردود ہے. مردود مردود کہیں گے اسے. مردود میم رے مر دال واپے دودھ دال ساکن مردود. ٹھیک ہے. وہ مسلمان کافر رہے گا معافر کہ ایک دم کافر معافر نہیں کہا جاتا ایک دم. ٹھیک ہے. اچھے لیکن جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے. ہاں ارے وہ تھوڑا بات بس یہ ہے کہ مردود کہیں گے اسے. مردود. اب وہ کس انداز میں کہتا ہے کیونکہ کیا کہتا ہے پھر وہ دیکھا نہ ہو جو پڑتا ہے کیا کیا معاملہ ہے کیا کیا قول ہے اس کا. ایک دم یہ نہیں کہ کافر کے دو اتنا کہ یہ مردود ہے بہت ہے بس مردود کا استعفا کرے. یعنی وہ مردود ہے جو صحابہ کو کافر کہے گا. ہاں مسلمان ہے. ارے مردود ہے کہہ دیا. اب یہ زیادہ کھینچان مت دیا کرو مسلمان ہے کہ کافر ہے شیطان ہے کہ فلانا ہے دھماکہ ہے. یہ کھینچان یہ سب بریلی والے کرتے ہیں کہ مفتی محبوب صاحب کیا ہیں وہ تو مسلمان نہیں ہے تو دیوبند والوں کو مانتے تھے. یہ بغدادی والے مفتی صاحب ہیں مسلمان نہیں مان رہے. حافظ فاروق ٹانڈا والا مسلمان نہیں مان رہا. اب ایسے کھینچان کرو گے تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر پورے رامپور میں اتنے امام نماز پڑھا رہا ہے مشکل سے 2-4 ملیں گے. پھر تو ان لوگوں کے حساب سے حافظ فاروق ٹانڈا مفتی صاحب یہ بغداد والے اور حافظ فاروق جو وہاں پر گوندپورے کا ہے مولوی لئی گوندپورے کے ہیں اور یہ حافظ یعقوب ہیں ان لوگوں کے حساب سے کون مسلمان ہے. پھر حکیم گنج کی مسجد والے بھی مسلمان نہیں ہے. دوسری مسجد بنائیے پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہہ دیں گے پہلے کھڑے ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہیں. یہ اذان اندر لیتے ہیں مسلمان نہیں ہے. ایسے ایسے کافی نہیں کہا جاتا. اعلیٰ حضرت نے پڑھا لکھا نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یزید کو ہم کافر نہیں کہتے. یزید کا صحابہ کرام کو مانتے تھے جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جو صحابہ کرام کو ایسا کہے وہ کیا ہے. اب یزید کون سا اچھا تھا. یزید نے کیا اچھائیاں تھیں. یزید نے تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا. پھر اعلیٰ حضرت نے اسے کافر کیوں نہیں کہا. اب بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں کہا یزید کو. بتاؤ تم ہی جواب دو. جب یزید نے شہید کروایا امام حسین علیہ السلام کو اسے سب مانتے ہیں دیوبندی بریلوی. اب پھر اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں کہا. جواب دو اس کو. تو امام اعظم نے کافر کیوں نہیں کہا؟ ارے امام اعظم کی بات چھوڑو تم پہلے اعلیٰ حضرت کی بات کرو. کہاں لکھا ہے کہ امام اعظم نے کافر نہیں کہا. کس کتاب میں لکھا ہے بلا وجہ امام اعظم کے اوپر کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا کہ امام اعظم نے کافر نہیں کہا. ارے امام اعظم نے نہیں کہا. امام احمد بن حنبل نے تو کہا ہے. اچھا تو ایک بات میری بات سنیے. تو کافر اس کا کفر تو چاہیے ہمیں. اس کا کفر کہاں ہے کس طریقے سے اس کو کافر جو کیا ہے؟ امام حسین کو شہید کروا رہا ہے اس کا کفر نظر نہیں آ رہا. اور ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ خالی مردود ہوگا کافر نہیں ہوگا. جو صحابہ کرام کو برا کہے اور جو شہید کروا اسے بھی آپ کہہ رہے ہو کہ کفر کیا ہے اس کا کفر. ارے ملا جی امام حسین غیر انبیاء کا جو غیر انبیاء کو شہید کرے کافر ہو جائے گا غیر انبیاء کو شہید کرنے والا. ارے تو جو برائی نہیں کہہ رہا بلکہ شہید کروا رہا وہ بھی مسلمان ہے آپ لوگوں کی نظر میں. قرآن میں من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نہیں قرآن میں ہے. قرآن میں وہ تو مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے. وہ تو مسلمان بھی جہنم میں جائے گا پھر بعد میں جنت میں جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ بہتر جانے کون جائے گا کون نہیں جائے گا. اس لیے اپن کو اچھی امید رکھا کرو. ایسے بار بار سب سے مت پوچھا کرو کہ یہ کافر ہے کہ نہیں وہ کافر ہے کہ نہیں. ارے جو کافر ہے تو کافر ہے. ایسے کھینچ تان کر کے کہ صاحب مفتی محبوب والے صاحب کیا ہیں رامپور والے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کیا ہیں ایسے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں بچے گا. ایسی بات نہیں ملا اطہر صاحب. آپ گھما پھرا کے یا آپ تائید کریں. رشید گنگوئی نے ایسی بات کہی ہے اس سے پوچھا. ارے جانتے تم گنگوئی اور نازوی اور یہ سب وہی گڑے مردے اکھاڑتے رہتے ہو. خبر پتہ مت بنو. خبر بجو بنو. یہ گنگوئی نے خبر بجو مت بنو. کتنا بڑا مردود ہے ملا اطہر صاحب. آپ کتنے بڑے خبر بجو مت بنو. خبر بجو بھی مت بنو. سیدھے عالمگیری میں اولیاء اللہ کے ماننے والے بنو. نہیں ملا اطہر فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو حضرت عمر صدیق اکبر کو مومن نہ مانے مسلمان نہ مانے وہ کافر وہ مرتد ہے.
तो उस फिर आदमी फाजिल ने बरेलवी ने क्यों इसको, हो गया। फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा है तब्दीलियों को? तब्दीली मुसलमान है, फाजिल बरेलवी ने लिखा है। फतावा बरकातिया सफा 50 में पढ़ लो, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने हवाला दिया है हाँ हाँ कि तब्दीली मुसलमान तब्दीली है। क्या है? तब्दीली क्या साहबा किराम को मानते हैं? हाँ पता क्या वो नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं? क्या वो हजरत उमर को मानते हैं? क्या वो हजरत उस्मान गनी को मानते हैं? क्या वो हजरत मौला अली को मानते हैं? क्या वो हजरत खालिद बिन वलीद को मानते हैं? क्या हजरत माद बिन जबल को मानते हैं? क्या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते हैं? क्या वो हजरत तलहा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते हैं? क्या वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं? बताओ। हाँ तो जो साहबा क्या वो काफिर मानते हैं? क्या वो कौन? काफिर मानते हैं साहबा को? हैं? वही तब्दीली क्या काफिर मानते हैं? अरे अब कौन पकड़ पकड़ के पूछेगा सबसे कि तुम क्या मानते हो? क्या यही ड्यूटी लगा रखी है अल्लाह ने? क्या अल्लाह ने क्या ड्यूटी लगाई है कि ये पूछते फिरो दुनिया भर में? अल्लाह ने कहा है नेक काम करो और कब्र की फिक्र करना चाहिए, कब्र की कयामत की, कि सारी जिंदगी यही करते रहोगे कि देवबंदी में ये लिखा है, हिफ्जुल ईमान में लिखा है, तक़वियतुल ईमान में लिखा है, सिरात में यही काम कर रहा है। हाफिज फारूक टांडे वाला, ये टांडा भोट वाला, अब वहाँ के लोग समझ आएंगे कि चल मुसलमान बना। कैसे मुसलमान बनाएगा तू? क्या क्या पढ़ के बनाएगा? और कैसे क्या क्या करना है? हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है? टांडा में तो सब वही बता। इनकी रिश्तेदारियां होती थी, इनकी औलाद का क्या हुआ? फिर इनका निकाह नहीं हुआ क्या? इनकी औलादों का क्या औलाद हरामी मानेंगे क्या हम? और क्या बोला जाता है कि क्या क्या सवाल हो जाएंगे कि फिर हमने जो लड़कियां दे दी हैं इधर उधर, टांडा वाले कह देंगे कि इनके निकाह हुआ है, कहीं वो कहेगा नहीं हुआ, तो ये औलाद हरामी हुई। फिर अगर हम सुन्नी बन भी जाए तो इस तरह, तो फिर हम इस औलाद का क्या करेंगे जो हमारी लड़की से पैदा हुआ या लड़के से पैदा हुआ? क्या ख्याल है? अरे वो सब छोड़िए, वो सब आप झूठ फसाद क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या बताइए। और आला हजरत ने क्या लिखा है समझे आप? रशीद सय्यिदुल मुत्तक़ीन, सय्यिदुल मुत्तक़ीन, यानी सिद्दीक़ अकबर पे लाखों सलाम। आएगा नहीं हालत? सिलसिले बार चलो, वो उमर जिसके आदा पेशे दस्तकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। ये तरतीब है सलाम की। फिर हज़रत उस्मान पे, फिर हज़रत मौला अली पे, इस तरह से ऐसे नहीं पढ़ा जाता सलाम कि 2-3 शेर पढ़ के आला हजरत पे लाखों सलाम। ये आला ने जो तरतीब है, खुतबे वाली तरतीब है, उसी तरतीब से पढ़ना पड़ो, नहीं तो सिर्फ नबी में सलाम भेजो, दुआ करो बस। ये मैंने बताया था एक बार तकरीर में, जब फखरे कर्नाटक मौलवी इंतजार अहमद काजी को मैंने बुलाया था इधर अंतर राजस्थान में, तब मैंने ये तरतीब से बताया था। अरे वो नहीं, रशीद गंगोई तो आप बोले सबसे पूछा जाएगा ये तो रशीद गंगोई तो साफ उसकी बात जाहिर हो रही हो, तो साफ साफ लिखा है कि अहले सुन्नत से भी खारिज नहीं होगा। बताओ, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार और असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, है क्या नहीं? अरे हाँ, तो ये हदीस शरीफ है, असाबी कन्नुजूम बय्ये में इख्तदयतुम एहतदयतुम, मेरे साहबा सितारों की मानंद है, तुम इनमें से जिस किसी की इख्तिदा कर लोगे हिदायत पाओगे। है बिल्कुल बिल्कुल हिदायत बस पाओगे। देखिए, सिलसिले बात चलो। कभी बरेली में, मुबारकपुर में, कानपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, इंदौर में जश्न इमाम बाकर क्यों नहीं हुआ, जश्न इमाम जाफर नहीं हुआ? इसका जवाब दो। जो 60 सवाल तुमने नदवा पे कायम किए थे, जो हजरत फाजिल बरेली ने 60 सवाल नदवा पे कायम किए थे, मैं इन पर सवाल करने जा रहा हूँ। नदवा की तरफ से नहीं मानो आप, और नदवा वालों के लिए भी कि नदवा वालों ने क्यों नहीं किया, देवबंद वालों ने क्यों नहीं किया, सहारनपुर वालों ने क्यों नहीं किया, बरेली मेरा सबसे सवाल क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तो क्लियर बताओ कि इनको हम ये मानते हैं, बात खत्म हो जाए। सबसे मेरा सवाल है कि इंदौर में जश्न इमाम बाकर क्यों नहीं हुआ, इंदौर में जश्न इमाम जाफर क्यों नहीं हुआ, उज्जैन में क्यों नहीं हुआ, रतलाम में क्यों नहीं हुआ, कोटा में क्यों नहीं हुआ, उदयपुर में क्यों नहीं हुआ, चित्तौड़ में क्यों नहीं हुआ, अजमेर शरीफ में क्यों नहीं हुआ? अजमेर शरीफ में तो शायद हुआ होगा, ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा सबसे सवाल है कि सब करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दो चीजों को तुम्हारे दरमियान में छोड़ूंगा, एक कुरान एक मेरी इतरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे।
कभी गुमराह में हो गए। आपने किया है कभी जश्न इमाम बाकर? आपने किया है जश्न इमाम मूसा काजिम? कभी किया है मैंने आपने? अभी हाँ टांडा रामनगर में मैंने 12 इमामों की फातिहा करवाई थी, देख बनवाई थी 2। मैंने तकरीर किया 12 इमामों पे, हजरत इमाम हसन अस्करी से ले हजरत इमाम हसन अस्करी, हजरत इमाम नकीम, इन 12 इमामों की फातिहा करा के आया हूँ मैं। पहली बार तारीख टांडा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शायद पहली बार ही फातिहा हुई होगी। मेरे ध्यान में तो नहीं है कहीं 12 इमामों की कोई ने फातिहा दिलाई हुई होगी, मेरे ध्यान नहीं है। लेकिन टांडा में तो मैंने ही पहली बार दिलाई है, रामनगर। लेकिन वहाँ के टांडा रामनगर में, काशीपुर में मुफ्ती जुल्फकार नईमी ने आज तक जश्न इमाम बाकर नहीं करवाया, न करवाएगा, न जश्न इमाम जाफर करवाया। अभी जश्न इमाम मूसा काजिम के हम पैसे भेज रहे थे 50,000, वो फेल हो गया। वो ताहिर अदाने के लिए कि आला हजरत, वो आला भाई आला हजरत का चर्चा होगा तो फिर जश्न इमाम मूसा काजिम कहाँ होगा? फिर वो ताहिर अदाने आला हजरत को बीच में ले आके साहब उनका भी वो होगा नारा। नहीं ताहिर रज़ा ने कहा था, ताहिर रज़ा ने एकदम साफ कहा था कि इमाम मूसा काजिम के अलावा हाँ, वो पहले कहा था कि इमाम मूसा काजिम पे ही तकरीर होगी, और उसने ये भी कहा था उनका ही नारा लगेगा, ये भी कहा था। बाद में बदल गया। मुफ्ती जुल्फकार ने कहा होगा कि यार ऐसा मत कहो, बल्कि यूं कहो कि आला हजरत का भी नारा लगेगा, और आला हजरत का भी जब चर्चा होगा तो फिर जश्न इमाम मूसा काजिम कहाँ हुआ फिर काशीपुर में? वो फेल हो गया। हमने फिर वो मुजाहिद मिल्लत हाजी इकराम साहब ने कहा था इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अरे भाई, अरे तुम आला हजरत का चर्चा पूरी दुनिया में कर रहा हो, हर जगह कर रहा हो, तो क्या मकसद क्या है तुम्हारा? कुरान में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा जिक्र, वसब्बिहूहु बुकुरतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। और अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके वजह नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों नबी पर खूब दरूद भेजो, सलाम भेजो। और ये क्या कर रहा है कि फाजिल बरेलवी का चर्चा पूरी दुनिया में कर रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरा भी जिक्र करो, बहुत ज्यादा करो, सुबह शाम पाकी बयान करो, और मेरे नबी पर दरूद भेजो, खूब दरूद भेजो, सलाम भेजो। ये तो उल्टा कर रहा है। क्या आला हजरत से मुकाबला करो? आप ये कह रहे हो कि मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अमेरिका वाले, गुजरात वाले, अफ्रीका वाले, इंग्लैंड में जश्न आला हज़रत तो मनाएंगे, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, गुजरात में, हर जगह, लेकिन जश्न इमाम बाकर नहीं मनाते, जश्न इमाम जाफर नहीं मनाते, जश्न इमाम मूसा काजिम। इस्माइल अमजदी सूरत में है, इस्माइल अमजदी सूरत वाले ने आज तक जश्न इमाम मूसा काजिम नहीं मनाया, न जश्न इमाम बाकर सूरत में मनाया, न जो है कि ये पेटलाद में मनाया। पेटलाद में जितने बरेलवी हैं उन्होंने किसी ने नहीं मनाया, मैं भी पेटलाद भी गया हूँ। न आनंद वालों ने मनाया, न बड़ौदा वालों ने मनाया, न अहमदाबाद वालों ने मनाया, न गोंड। मैंने तरावी पढ़ाई है दोहरा जी में, चिश्तिया मस्जिद में, उन लोगों ने भी जश्न इमाम बाकर, जश्न इमाम जाफर नहीं मनाया। न इंदौर में अनवारुल बयान ने मनाया, खजाना में जिनका मदरसा है अनवारुल बयान, उसने भी नहीं मनाया कभी जश्न इमाम जाफर इमाम बाकर। और ग्रीन पार्क में कारी यूसुफ इंदौर में, इसने भी कभी नहीं मनाया जश्न इमाम जाफर इमाम बाकर। मुफ्ती आरिफ बरकाती हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि चलो हम श्रीनगर की मस्जिद में जश्न इमाम बाकर करवाएंगे, कभी नहीं कहा। सीरत तो बयान करते हैं, सीरत बयान करते हैं। मैंने आपको इमाम ज़ैनुल अरे ऑल वर्ल्ड में एक भी बरेलवी ने, न देवबंदी ने, न अहले हदीस ने, किसी भी आलिम ने 1 घंटा न तो इमाम ज़ैनुल की शान बयान की, न इमाम बाकर की, न इमाम किसी भी तबके के बयान। बताओ किसी की तबके की कोई ऑडियो वीडियो है? लाओ मुझे भेजो, 1 घंटा का किसी ने की हो? नहीं तो हजारों हम आला हजरत पर भेजेंगे, हजारों आला हजरत पर हजारों मिलेंगी। लेकिन इमाम ज़ैनुल भी एक ऑडियो बता दो जो 1 घंटे की। कमरुज़्ज़मा आज़मी ने 1 घंटे की तकरीर कभी नहीं की इमाम जाफर पे, न इमाम 1 घंटे। कमरुज़्ज़मा आज़मी जो इंग्लैंड में है, कभी 1 घंटे की तकरीर नहीं की इमाम जाफर पे, न इमाम बाकर पे। पजामा टखनों से नीचे पहनना है, मुफक्किर इस्लाम का लक़ब है। अरे मुफक्किर इस्लाम का लक़ब ले रहा हो, पजामा तो ऊंचा पहनो टखनों से, लोग क्या कहेंगे कि इस्लाम के मुफक्किरों और पजामा इस्लाम के खिलाफ है। वो नहीं मुल्ला साहब, तो जो क्या बोला जाता है, गुजरात के मालदार लोग हैं उनको आप दे रहे हो 400 रुपये गरीबी के जमाने में स्कॉलरशिप दे रहे हो जामिया इस्लामिया रुनाई में, और गरीब बच्चों को जो यूपी के पढ़ रहे हैं बिहार उनको कुछ दे नहीं रहे, तो कैसे आप मुफक्किर इस्लाम हो? मुझे खुद गुजरात के बच्चे ने बताया कि हमें 400 रुपये मिलते थे आज से 18 साल पहले, कम से कम 18-15 साल पहले जब गरीबी थी, जब मिलते थे 400। तो कह रहा कि यूपी वाला आया, कह रहा कि हमें भी दिलवा दो यार, तो नहीं, वो वहाँ पर निजाम था। कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब की तरफ से सिर्फ गुजरात के बच्चों को 400 रुपये, वो भी गरीबी के जमाने में, जो आज के जमाने के 4,000-5,000 रुपये।
तो क्या ऐसे को मुफक्किर इस्लाम कहा जाएगा? वो लड़के ने मुझे खुद बताया ना, गुजरात बड़ौदा का पढ़ता था कि हमें 400 रुपये स्कॉलरशिप इतनी खाने पीने के अलावा। अब बताओ गरीब बेचारे कितने उनकी जान जलती होगी, कितने बेचारों का यार दिल दुखता हुआ यार। हमें भी पैसा मिलता तो हम भी बिरयानी खाते, बाहर जाके ये करते वो करते। उस जमाने के 400 रुपये बहुत थे 18-20 साल पहले के, 20 साल पहले। अच्छा खाली आप ही बोलेंगे कि हमें भी बोलने का मौका देंगे? अब आप भी बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो, सुपर फास्ट। हमने आपको वीडियो अल्लाह की कसम भेजा था, वो भेजा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, लाइव चल रहा था सीरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन बयान कर रहा है? हाँ मैंने आपको भेज दिया था, बहुत एक हफ्ता 20 दिन पहले भेज दिया है हमने। सुन्नी आलिम बयान कर रहा है, नाम मत है क्योंकि इस्माइल अहमदी नहीं बयान कर रहे हैं तो मुफ्ती इस्लाम नहीं बयान कर रहे हैं, सुन्नी आलिम बयान कर रहे हैं। और आपने कितनी बार जश्न इमाम बाकर किया है? मैंने बताया ना, अभी टांडा रामनगर में अभी 1.5-2 महीने पहले करके आया हूँ मैं फातिहा। क्या कर किया है? बयान भी किया मैंने, वो बयान होगा रिकॉर्ड तो मैं भेजूंगा। कितना भेजिए, कितना घंटा की है रिकॉर्डिंग के? सब 12 इमाम पे आप बता रहे हैं, कितना घंटा आप वीडियो बनाए हैं, जरा हमें भेजिएगा तब तो मालूम पड़ेगा। अब ये तो वहाँ के इमाम की जिम्मेदारी है ना, जो जामी मस्जिद के इमाम है वो कहें कि इंशाल्लाह हर साल जश्न इमाम बाकर भी रामनगर में होगा, जश्न इमाम जाफर भी होगा, तमाम इमामों के जश्न होंगे। और हजरत अबू बकर के नाम का भी होगा, हजरत उमर के नाम का भी होगा, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम का भी होगा, ताकि बहादुरी पैदा हो। आज मुसलमानों में बुज़दिली आ रही है। खालिद बिन वलीद के नाम से भी अब ये मुफ्ती जुल्फ़िकार जिम्मेदारी लें और कसम खा के कहें, वहाँ मस्जिद में काशीपुर की इंशाल्लाह मैं हर इमाम का जश्न कराऊंगा। अतर काजी से पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 50,000 भेजा था ना, तो जोश में आके कहे मुफ्ती जुल्फ़िकार, अब उसके पैसे से कोई जरूरत नहीं, हम खुद जश्न इमाम बाकर काशीपुर के लोग ऐसा नहीं कि मर गए कि जश्न इमाम जाफर मूसा काजिम के लिए अतर हुसैन काजी से पैसा मंगवाए। मैं भेज रहा था ना, मैंने वादा किया था 50,000, लेकिन वो ताहिर रज़ा ने अड़ंगा लगा दिया कि वो तो आला हजरत का होगा। नहीं यार झूठ, आप वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं ताहिर रज़ा की? हाँ भेजूंगा ना, भेजूंगा। हमें आप वो रिकॉर्डिंग भेज दी जिसमें भेजूंगा। पहले तो कह रहा था कि खाली इमाम मूसा काजिम का नारा लगेगा, उनका ही शान में बयान होगा, बाद में बदल गया। वो मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी के यहाँ से, तो मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी पहले हजरत पीर फ़खरुद्दीन मियां रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, बाद में उनका मुखालिफ हो गया कट्टर। वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अब वहाँ के जो इमाम है मुजाहिद मिल्लत, जो हजरत सदरुल उलमा के मुरीद है, हजरत वो क्या नाम है, मुनादिर साहब, बहुत शख्सियत है काशीपुर की, जामे मस्जिद के इमाम है, उनकी भी मुखालिफत में ये जुल्फ़िकार नहीं। अरे भाई सुन्नियों को लड़वाओगे तुम आपस में? तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई देवबंदी मुझसे मसला पूछेगा ये जुल्फ़िकार नईमी की तरफ से, तो मैं हदीस बना के पेश कर दूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरी तरफ झूठ बांधे वो अपने ठिकाने जहन्नम में बनाए। तो जुल्फ़िकार नईमी साहब ने कहा कि अगर कोई देवबंदी आएगा तो हम तो अपनी तरफ से हदीस बना के पेश कर देंगे। ये मुनाज़िर साहब ने मुझे भेजा है, जो वहाँ के पेश इमाम है, सदरुल उलमा के मुरीद हैं, वो शागिर्द भी हैं गालिबन। तो अब ये बताओ सुन्नियत कैसे फैलेगी यार? काशीपुर में देख लो आप, हर जगह वहाँ पर काशीपुर में क्या हाल है, जसपुर में क्या हाल है, ठाकुरद्वारा में क्या हाल है, ऐसी बातों सुन्नियत नहीं फैलती। सुन्नियत जब फैलती है जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, और जो आला हजरत ने तरतीब से सलाम भेजा है उस तरतीब से सलाम भेजो। सईदा हीरा पहिरा जाने अहमद तीरा लाखों सलाम। देखो अल्लाह ने जो तरतीब से सलाम भेजा उस तरतीब से भेजो आप, और अगर नहीं भेजना तो सिर्फ नबी पर सलाम पढ़ो और दुआ कर लो, इससे कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा। और अगर आपने 2 शेर पहले नबी की शान में 3 पढ़े और हालत पे भेज दिया तो झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे। काशीपुर में, ठाकुरद्वारा में, मुरादाबाद में, इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, कोटा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में गया। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा? अहले बैत को एक्साइट करके, साहबा को एक्साइट करके, गरीब नवाज को एक्साइट करके, गौसे को एक्साइट करके, बुआई शाह कलंदर को एक्साइट करके, अली शाहबाज कलंदर को एक्साइट करके, निजामुद्दीन औलिया को एक्साइट करके, ख्वाजा नसूरत को एक्साइट करके, शाहवुद्दीन अलवी गुजराती को एक्साइट करके, गौसुद्दीन नजमुद्दीन कलंदर को एक्साइट करके, कमालुद्दीन धारवी को एक्साइट करके, नाशा वाली इंदौरी को एक्साइट करके तुम सिर्फ आला हज़रत पे लाखों सलाम पढ़ लो यार। लोग बाग लड़ने लग जाएंगे उज्जैन में, इंदौर में, रतलाम में, कोटा में, उदयपुर में, देवास में, और ये चित्तौड़ में, गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, हर जगह। आला ने तरतीब क्या लिखा? वो सोचने को जन्नत का मुरीद मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों
सलाम, है कि नहीं? अच्छे मुल्ला अगर एक बार आपने कभी 1 घंटा ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीर की है? सुन्नियों को मैं 50 तकरीर दिखा दूंगा। अच्छा, आपने कभी की है? अब वो मेरी तकरीर रिकॉर्ड होना तो वो भेजूं, मैंने वहाँ की थी इंदौर के पास देवपालपुर में एक बार। 1 घंटा नहीं, वो सबूत आप तो झूठ बोलते हैं, आपकी बात का एतबार नहीं किया जाए। आप बोलते हैं रूह के ऊपर तकरीर की थी, वह सलू में कहानी रूह बोले रूह में नाम रब्बी। आपने कहा था कि हुसैन बिन मंसूर अल्लाह से कुफ्र का फतवा लगाया था, किसने लगाया था? वो हवाला भेजोगे मुझे? अरे आला हजरत ने खुद माना है, फतह वरदिया में देखो, आला हजरत कहते हैं उनके मुंह से निकली आवाज हम शजर तूबा के माने मानेंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त से आवाज आई थी इन्नी अनल्लाह। आला हजरत ने ये ताबील किया है, तावील की है। आप हवाला और हजरत थानवी साहब कहते हैं मैं होता उस जमाने में तो ये तावील करता कि अल्लाह फरमाता जो ज्यादा नवाफिल पढ़ता मैं इसकी जबान बन जाता हूँ जिससे बोलता है। कहा कि मैं ये तावील करता कि उनके मुंह से अल्लाह की आवाज निकली। वो तो हरामी किया हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगा, हालत में ही माना।